وادی کشمیر سے سول سروس امتحان میں طلبہ کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم کئی امیدوار وسائل کی کمی کی وجہ سے اس میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا اپنا ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ وادی کے ایک نوجوان عرفان رشید نے طلبہ کی سہولت کے لیے تعلیمی مواد جمع کرنے کا اہم کام کیا ہے۔ پیش ہے صنم تصدق کی رپورٹ۔ وادی کشمیر کے طلبہ تعلیم کے میدان میں بھی آگے ہیں۔ طلبہ مسابقتی امتحانات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنی تعلیمی لیاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تاہم وسائل کی کمی جیسے مناسب کوچنگ اور اسٹڈی میٹیریل کا نہ ہونا کئی طلبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میدان میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ چرارے شریف کے رہنے والے عرفان رشید نے ایسے طلبہ کی سہولت کے لیے تعلیمی مواد جمع کیا ہے۔ یہ جو ابھی سول سروسز میٹیریل کا آئیڈیا ہے، یہ لیٹلی مجھے آیا جب مجھے لگا کہ ابھی سول سروسز میں کشمیر سے کچھ لوگ تو جا رہے ہیں، سلیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس وہ افورڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو افورڈیبلٹی کی پرابلم کے لیے وہ جو ہمارے پاس یہاں پہ نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں جو اتنا پیسے نہیں دے سکتے، وہ تو ان کے لیے پھر میں نے سوچا، میں نے اپنے فرینڈ سے بات کی جو دلی میں کوچنگ کر رہے ہیں، جو بامبے میں کوچنگ کر رہے ہیں، تو ان سے میں نے کچھ ویڈیوز لیے جو جن کے لیے وہ وہاں پہ پڑھتے تھے جن ویڈیوز سے، تو ان ویڈیوز کو میں نے کمپائل کر دیا، اپنے لیپ ٹاپ میں کمپائل کیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اگر 10-20 بچے مجھے آس پاس اپنے گاؤں کے مل جاتے ہیں تو ان کو میں دے دوں گا، لیکن پھر ریسپانس بہت زیادہ آیا۔ آئی آلسو ریکویسٹ NGOs اور ٹرسٹس اور اکیڈمیز فرام آل دا ڈسٹرکٹس میٹیریل لے سکتی ہیں اور اپنے اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے تحصیل اینڈ فردر ٹو دا ولیج لیول تک وہ جائے اور یہ میٹیریل پہنچا دے۔ عرفان رشید نے ممبئی میں سول سروسز کی کوچنگ حاصل کی ہے۔ عرفان جرنلزم کی ڈگری رکھتے ہیں اور فی الحال ایک سرکاری محکمے میں PRO ہیں۔ عرفان نے اپنی اس مہم کا نام گیو بیک ٹو سوسائٹی رکھا ہے۔ عرفان چاہتے ہیں کہ یہ مواد دور افتادہ علاقوں تک بھی پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے صنم تصدق کی رپورٹ۔ کشمیر کے نوجوانوں کے ہنر کو پہچاننے اور اسے دنیا سے روشناس کرانے کے لیے نیوز 18 اردو کا ٹیلنٹ ہنٹ شو کشمیر کے ستارے بہت جلد شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کشمیر کی دلکش آواز ہیں تو نیوز 18 اردو کے پلیٹ فارم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کشمیری میں صوفیانہ، فوک، ریپ، روایتی یا ہلکی کلاسیکی موسیقی کا ویڈیو ریکارڈ کر کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر روانہ کریں۔ کشمیر کی ساز و آواز سے جھلملائیں گے کشمیر کے ستارے۔ نیوز 18 اردو کے ٹیلنٹ ہنٹ شو میں تمام فنکار بھیج رہے ہیں اپنی انٹریز۔ آپ بھی واٹس ایپ کریں اپنا ویڈیو اور زمانے کو دکھا دیں آپ ہیں کشمیر کے ستارے۔ ڈپارٹمنٹ کلرکل سٹاف ایسوسی ایشن کے بینر تلے ملازمین نے آج احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ بشنا میں کلرکل سٹاف کو مارنے والے قصورواروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اس میں یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپٹی کمشنر اور ڈائریکٹر جنرل پولیس سے پورا زور اپیل کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی یہ مسئلہ سیٹل کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ کڑی سے کڑی اس کو سزا ملنی چاہیے اور جموں کشمیر کا جو ملازم ہے اس وقت 4.5 لاکھ ملازموں میں ہے، یہ ان کے دل میں جو ہے یہ بڑا دکھ اور ٹھیس پہنچی ہے کہ ہمارے ملازم کو کس طرح پیٹا جا رہا ہے اور ہمارے ملازموں کی کیا سکوٹی ہے۔ میں کڑے نندیا کرتا ہوں اور میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آدمی کو جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ جموں خطے کے آل ڈپارٹمنٹ کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ نے آج جموں میں زبردست احتجاج کیا۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان کی دیرینہ مانگوں کو جلد از جلد پورا کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سرکار کو اب کیجول اور نیڈ بیسڈ ورکروں کو مستقل کرنے کی پالیسی لانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ چاہے وہ فلوریکلچر کی ہوں، چاہے PWD کی ہوں، چاہے PDD کی ہو، PHE کی ہو، مطلب ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی، آل ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو،
हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारी जो मुख्य डिमांडें हैं, जैसे रेगुलेशन पॉलिसी को लेके हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 18,500 जो हम चाहते हैं कम से कम 18,500 भी लागू हो, और हम ये कहते हैं कि हमारी जो पिछली लाइबिलिटी 7 सालों की 8 सालों की पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है, हमें हमारी वो भी रिलीज़ की जाए। शोपियां के तहसीलदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज किया। तहसीलदार ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। तहसीलदार का कहना था कि डीसी शोपियां की हिदायत पर वो सड़क को वसी बनाने के लिए कुछ इमारतों को मिसमार करने जा रहे थे, लेकिन वहां लोगों ने मज़ाहमत की। तहसीलदार ने बताया कि हालात के मद्देनज़र उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि लोगों को रोकने के बजाय पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। तहसीलदार साहब ये टीम वहाँ गए थे और उसके साथ गुंडागर्दी की गई। जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, वो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है और उसके पावर्स है। SHO साहब ने जो ये हरकत की, इसकी हम मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से, DG से, SP से मैं अपील करता हूँ एज ए सिविल सोसाइटी और सारे शोपियान की इसके हाई लेवल पर प्रूव किया जाए। हमारे तहसीलदार साहब रूटीन वर्क के तहत अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो इसी दौरान SHO शोपियान ने उसके साथ ज़्यादती की है और उसे बुरा भला कहा है। तो हम इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि SHO शोपियान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। तो हम इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हम DC साहब को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हम जब तक इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, हम पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे। बांडीपुरा में महकमे लेबर ने मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। न्यूज़ 18 उर्दू को तफसीलात फराहम करते हुए DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस का कहना था कि रजिस्ट्रेशन के इस अमल के लिए खुसूसी कैंप लगाए गए हैं। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। लेबर डिपार्टमेंट ज़िला बांडीपुरा में जो लेबर क्लास लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि उनको जो बेनिफिट्स हैं जो लेबर डिपार्टमेंट देता है एजुकेशन के लिए, कहीं कोई बीमारी होती है उसके लिए, या अगर अचानक से कहीं डेथ हो जाती है, स्पेशली जो लेबर हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उस दौरान हो जाता है उसके लिए, और मैरिज असिस्टेंस भी मिलती है, तो वो सारे बेनिफिट्स ताकि मैक्सिमम लोगों को मिल सकें, तो एनरोलमेंट ड्राइव एक लेबर डिपार्टमेंट ने शुरू की है। और खुसूसन जो अभी ये जन अभियान चल रहा है, इसके चलते 3 हमारे लेबर सरप्लस ब्लॉक हैं जो कि हाजिन, नौगाम और बांडीपुरा है, वहाँ पे स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे। 6 CSC को एनरोल किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की जानिब से ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर और ICDS महकमे के इश्तराक से लंगेट पहरूपेट में पोषण डे मनाया गया। इस मौके पर माहिरीन ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को इस स्कीम के अमलाने के हवाले से जानकारी दी। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने मुख्तलिफ अक़साम के बीज तकसीम किए। न्यूट्रिशन को खटाने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक मिशन मोड के तहत ये चलाया जा रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो मॉल न्यूट्रिशन से जो बच्चों में खासकर जो 6 साल से नीचे के उम्र के हैं और औरतों प्रेग्नेंट में खून की कमी पाई जाती है, जो एनीमिक बन जाते हैं, उसको दूर करने के लिए हमने ये जानकारी प्रोग्राम चलाया। आंगनबाड़ी का तो यही मेन मकसद है, हमें भी यही कि न्यूट्रिशन कैसे हम बैलेंस डाइट कैसे हर एक तक पहुंचाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर 18 ईयर एडोल्सेंट गर्ल तक। इसका खास मकसद आंगनबाड़ी से भी यही रिलेटेड है। न्यूट्रिशन डे हम मना रहे हैं। शोपियां के हिरपुरा में ड्राइवरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तारीखी बगल रोड गुज़श्ता साल के नवंबर से बंद पड़ा है। इंतजामिया इस शाहराह को बहाल करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से ड्राइवरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि मुगल रोड के बंद होने से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब फिर से नवंबर में बर्फ़बारी होगी, जिसके बाद मुगल रोड बंद हो जाएगी। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि मुगल रोड को खोला जाए ताकि वो 2 महीने काम कर सके। बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि वो उनकी मांगों को इंतजामिया तक पहुँचाएंगे। किया है
हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं मेहरबानी और मेहरबानी करके इन लोगों को पीर की गली तक इजाज़त दी जाए और इन लोगों को परमिशन दी जाए। अभी यहाँ पे 20 से 25 दिन अभी यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है। मेहरबानी और मेहरबानी करके इन लोगों को इजाज़त दो। अगर इन लोगों को इजाज़त नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगा, हम 2 दिन की मोहलत देते हैं और 2 दिन के बाद हम पूरा चक्का जाम करेंगे। यहाँ मुगल रोड तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी जो है क़यादत की है और ये रोड खोला गया है। आज अगर ये बंद है, ये कहीं किसी कारण की वजह से बंद है, बट अभी जो 84 करोड़ रुपया इसके लिए जो काम के लिए आगे रिलीज़ हो गए हैं, विद इन ए डेज मुझे लगता है कि मुगल रोड खुलेगा और यहाँ शोपियान के लोगों को राहत मिलेगी। 32 सालार आर्मी ने वित्रगाम से लेकर डांगी उछा तक मिनी मैराथन का इनकाद किया। नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने और उनकी जिस्मानी ज़हनी क़ुव्वत को बेहतर बनाने की गर्ज से प्रोग्राम का इनकाद किया गया। नौजवानों ने आर्मी की इस पहल से खुशी का इजहार किया। रफ़ियाबाद से बड़ी तादाद में नौजवानों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। रेस में जीतने वाले पहले 3 नौजवानों को नगद रकम से नवाजा गया, जबकि टॉप 24 नौजवानों को टी शर्ट्स और टोपी बतौर इनाम दी गई। शिरकत करने वाले नौजवानों ने आर्मी के ज़रिए ऐसे भी प्रोग्रामों की उम्मीद की है। ये फौज की तरफ से एक इवेंट है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और मैंने इस इवेंट में 4थी पोजीशन हासिल किया है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ इसमें पार्टिसिपेट करके। इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन नहीं ला सका, लेकिन अगली बार मैं ट्राई करूँगा अपनी फर्स्ट पोजीशन लाने की। मुझे उम्मीद है ऐसी और भी इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे।